Hello, am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we'll start with our next topic, that is alcohol, phenols, and ethers. So we'll be going through the NCERT book first. Okay. So I'll be sharing the screen with you, and then one by one we'll approach all the topics. So we'll be looking into the NCERT book. Everyone is able to see? Hello? Yes, sir. Okay. Okay, so let us start. This is the chapter which we are going to study, alcohol, phenols, and ethers. So as we know, alcohols are the class of compound in which an alkyl group is attached to a hydroxyl group, that is OH. Okay. Phenols means if in place of R, if we have a phenol, okay, sorry, not phenyl group, okay, and ether, the general formula is ROR. Okay. So these are the three topics which we'll be going to study in this chapter. So yes, alcohols can be monohydric, dihydric, or trihydric, depending on the number of hydroxyl group that is there in this compound. Okay. If it is having one hydroxyl group, it will be monohydric. Similarly, here you are seeing CH2OH, CH2OH, that is ethylene glycol. Okay. So that is a dihydric because it is having two OH attached to it. Okay. Similarly, trihydric, you can see in the photo, this is CH2OH, CHOH, CH2OH. So this particular compound, CH2OH, so this is called as glycol. Okay.
So this is a trihydric. It is having 3 OH groups attached to it. Then if you look further, alcohols can have OH group attached to a sp2 hybridized carbon or sp3 hybridized carbon. Okay. Yes. Achha, one thing you notice, you cannot have a gem dihydric like you had in case of alkyl halides. Okay. In case of alkyl halides, you had something like this. This halide group can be attached to the same carbon, but this will not be the case in case of alcohols. Okay. sp3 hybridized alcohol, it cannot have 2 OH groups attached to it. Okay. This is R, this is R dash. Okay. Such a situation is not possible because the carbon oxygen pi bond is very stable. Immediately, as soon as something like this is formed in the reaction, R, C, R dash, OH, OH, immediately it is going to lose one water molecule. H2O will get eliminated and it will form a ketone. Okay. So that is why this geminal dihydroxyl group is not very stable in case of alcohols, unlike alkyl halides where this geminal dihalides were possible. Okay. Okay. Then this OH group can also be attached to a sp2 hybridized carbon. For example, this is CH2 CHOH. Okay. So this particular compound is called as enol. Okay. Why it is called as enol? Because it has a double bond that is en, okay, and it has an alcohol that is ol. Okay. So en plus ol, that is enol. And as all of us know, in tautomerism we have studied this, that this enol group is in equilibrium with its keto form. Okay. That is CH3 C double bond OH. Okay. So like this. Achha, whatever I am writing, is it clearly visible to everyone? Yes, sir. The volume is very low. Is it clearly visible to everyone? Hello? Yes, sir. Okay. Then moving further, these are the phenols, then ether. Okay, these things are little bit easy part, so you can go through it yourself from the NCERT book. So I will be focusing more on the reaction mechanisms and some things which are not there in the NCERT. Okay. So preparation of alcohols. This is the easiest method of preparation of alcohol from alkenes. Okay. From alkenes, you just add a H plus, you add the acidic medium, and you add water in acidic medium. Okay. So H plus is going to form a carbocation wherever it is stable. Okay. And then water molecule is going to act as a nucleophile, as you can see in this reaction. It is visible to everyone? Yes, Hello? sir. Yes, sir. So this mechanism is quite simple. So as you can see in this reaction, carbocation will be formed, and because carbocation will be formed, it can undergo rearrangement and it can undergo hydride shift to form more stable carbocation. So here rearranged product is possible. Okay, rearrangement is possible in this case. This reaction is important, hydroboration oxidation. So I will be discussing this. One second. This reaction on the board.
Second. Okay. So this is your hydroboration oxidation. Hydroboration oxidation. So let us consider an unsymmetrical alkene. Like it is an unsymmetrical alkene in the sense that you have a 1 degree carbon here and you have a 2 degree carbon here. Okay. Now in this you are going to add BH3 molecule. Okay. BH3. Usually it is not written as BH3. BH3 exists in the form of diboron, which is a dimer. So all of us have seen this in boron carbon family. What is the structure of this B2H6 dimer? So, but we don't need the dimer here because in the dimer, in B2H6 dimer, the structure is something like this: BH, hydrogen, hydrogen, H. Okay, and this bond is like this. Okay, so this bond keeps swapping between these two. So partially the octet of this boron gets completed in this structure in the dimer form. This is not very strong electrophile. Okay, but here we need strong electrophile. That is why you will find in sometimes it is mentioned also that whenever this reaction hydroboration oxidation is there, in addition to BH3, we add THF. What is this THF? THF is tetrahydrofuran. So tetrahydrofuran is this, like this. This is your furan. Okay. And just 4 hydrogen. In the case of these double bonds, you just replace them with 4 hydrogens. So that will become your tetrahydrofuran. Okay. So what is the effect of adding tetrahydrofuran? It helps in monomerizing the B2H6. Okay. So B2H6 is there. If you add THF, then it is going to monomerize. How it is going to monomerize? Like this. Okay. Like this, there is a coordinate bond over here, and this helps in monomerizing the B2H6. Now BH3 is we have this BH3, and we know BH3 is a electron deficient compound. It is a electrophile. Okay. So being an electrophile, it attacks this double bond because here are pi electrons over here. Okay. So this electrophile is going to attack, and it attacks in a very unique way. Okay. It attacks in such a way that the hydrogen part gets attached here. This CH, CH2. Okay. Here is this H, B, H2. I'm writing like this so that we can draw the reaction nicely. So this is your double bond.
So what happens over here is syn addition. Okay. So we had already studied what is syn addition and anti-addition. Syn addition means addition of two groups from the same side. Anti-addition means addition from the opposite side. For example, in our hydrocarbons chapter, we had discussed the bromination reaction, okay, halogenation reaction. So in that the cyclic bromonium ion is formed, and that cyclic bromonium ion, the addition is anti-addition, okay, because cyclic bromonium ion is like this. Other Br minus attacks from the opposite side, and this Br minus leaves from this side. So that is anti-addition. But here what you are seeing is syn addition, because this hydrogen and this BH3 group, they are attacking this bond from the same side, and they will form bond over here. So this is very important to mark that here it is actually a syn addition. So the syn addition takes place in this way. This bond starts to get broken, this pi bond. This bond starts to get formed, this bond starts to get formed, and this bond starts to get broken. Okay. So I'm drawing this with the cross. The cross bonds are getting broken, and this dotted bonds are getting established. Okay. So then you will get something like this: CH3, CH, H, CH2, BH2. Okay. So this is the first step of this reaction. Now what happens after this? Again, this compound BH3, it is again electron deficient, because boron is only having 6 electrons around this. So again, these molecules act as an electrophile, and this is going to attack another molecule of this CH3 CH2. I'm drawing it over here. This is CH3 CH double bond CH2. Again, this is going to attack, just like in this case, there was pi electron cloud and this electrophile attack. Here also you are going to see pi electron clouds, and this electrophile is going to attack. Again, in the similar fashion, just like BH3 addition has taken place, here also BH2 addition will take place. Let us say, in order to simplify things, we are referring this group as R group. Okay. We'll call this R. Okay. So here, what is the reaction? RBH2 is attacking this. So this is the molecule CH3. This is the molecule CH3, CH, double bond, CH2. Same molecule. Okay. And here, what is attacking here? This is RBH2. We are referring at RBH2. So again, we can write it like this. This is H, this is B, and there is R, there is H. Okay. Again, same fashion, the syn addition will go on. This is the bond that is going to break. This is the bond that is going to break. This is the bond that will be formed. This is the bond that will be formed. So what will the product of this reaction? Again, CH3, CH2, CH2, B, R, H. Okay. Again, this is the same group which we are referring to as R. This can again be written as R. Okay. And again, this becomes a electron deficient compound. Okay. So again, it is going to attack another molecule of CH3 CH2. CH3 CH2 CH2. Again, the same reaction will go on, and finally you will get the product B R R R. Is it clear to everyone? Till now, everyone is there with me? Hello? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Okay. So just note it down, then I have to erase it because space is little less.
Is this clear to everyone? Have you written it? Can I remove it? Hello? Yes, sir. हटा दे इसको, लिख लिया सबने? Yes, sir. Is it clear? Hello? Yes, sir. इसको Yes, हटा दे, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. आप लोग चुप क्यों रहते हैं इतना? ओके, तो इसको हटाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमारे रिएक्शन में हुआ क्या है? फर्स्ट पार्ट हमारा रिएक्शन का कंप्लीट हुआ है, दैट इज हाइड्रोबोरेशन। तो हाइड्रोबोरेशन के एंड में हमारा प्रोडक्ट क्या बना? Br3। ठीक है, बी से 3 आर ग्रुप लगे हुए हैं। सेकेंड स्टेप होता है इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इसमें हम डालते हैं H2O2 इन बेसिक मीडियम। ठीक है, H2O2 इन OH माइनस। तो यहाँ पे क्या करता है, पहले इसका रिएजेंट जो होता है उसको देखते हैं हम लोग। तो H2O2 प्लस OH माइनस, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाता है? दिस बिहेव्स एन एसिड एंड दिस बिहेव्स एज अ बेस। तो यहाँ पे OOH माइनस ये बन जाता है प्लस H2O। तो OH माइनस ने इससे एक H प्लस ले लिया। नाउ दिस इज गोइंग टू बी योर न्यूक्लियोफाइल इन दिस केस। ठीक है, और अगेन Br3 का जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको देखो, अभी भी इसका क्या हुआ है? ऑक्टेट कंप्लीट हुआ नहीं। ठीक है, अभी भी इसके पास क्या है? बोरॉन के अराउंड जस्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। ठीक है, सो दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक्स दिस बोरॉन। ठीक है, और उसके बाद हमारा कंपाउंड क्या हो जाता है? Br R R O O H minus. Okay, so this becomes your compound. अब यहाँ पे क्या होता है, देखो बोरॉन पे माइनस चार्ज है तो इट पुल्स आउट दिस R माइनस। ठीक है, ये R माइनस पे R माइनस को बाहर निकालने का कोशिश करता है इधर से, और यहाँ से OH माइनस बाहर निकलता है। ठीक है, OH माइनस जैसे जैसे बाहर निकलेगा तो इस ऑक्सीजन पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा क्योंकि OH माइनस यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, और ये R माइनस के साथ आ रहा है तो ये R माइनस क्या करता है? इस डेल्टा प्लस पे अटैक करता है। ठीक है, तो व्हाट कंपाउंड वी आर गोइंग टू गेट इज B ठीक है, तो यहाँ पे ये हो रहा है, तो यहाँ पे ये R माइनस हमारे O पे अटैक कर रहा है और ये Br2OR बन जा रहा है। इज इट क्लियर? हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है सबको? Yes, sir. आपका रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है कुछ, आप लोग कुछ बोल रहे हैं क्या? साउंड थोड़ा लो है शायद।
Hello? Hello, everyone is able to understand this? Yes, sir. Yes, sir. आपका साउंड क्यों नहीं आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे देखो ये हमारा ओआर जो बना, तो अगेन इसका ऑक्टेट बोरोन का हमारा क्या है, कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अगेन दिस विल बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे एक दूसरा OH माइनस का मॉलिक्यूल एज न्यूक्लियोफाइल इस पे फिर से अटैक कर सकता है, ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे किया, सॉरी नॉट H2O, दिस OH माइनस, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा B R R O R O O H माइनस, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा इंटरमीडिएट बना वैसा ही बनेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, B पे माइनस चार्ज है, तो ये R माइनस को इधर से पुश करेगा और यहाँ से OH माइनस निकलेगा, तो अगेन हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, B R O R O R, ठीक है। अगेन इसका ऑक्टेट हमारा कंप्लीट नहीं है, तो दिस विल अगेन बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अगेन दूसरा H2O2 मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस पे रिएक्ट करेगा, इस पे अटैक करेगा, ठीक है। फिर हमारा ऐसा इंटरमीडिएट बन जाएगा B R O R O R O O H माइनस, ठीक है। फिर से यहाँ पे क्या होगा, OH माइनस निकलेगा और ये R माइनस आके O पे अटैक करेगा, तो फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, B O R O R O R, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है। इस चीज का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे H2O के साथ, ठीक है। तो वाटर अगेन क्या है, न्यूक्लियोफाइल, दिस इज अगेन इलेक्ट्रोफाइल, इसका अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन्स ही है इसके पास, तो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। फिर से इस पे अटैक होगा वाटर का, और इस बार क्या हो जाएगा, B OH OH OH, हमारा ऑर्थोबोरिक एसिड होता है, और RO जो था, RO से हमारा क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो वाटर का OH माइनस पोर्शन हमारे बोरोन पे लग गया, और ये OR पोर्शन जो है वो हमारे H प्लस से हमारा OR माइनस जुड़ गया, ठीक है। तो इस तरह से वाटर का एडिशन हो गया, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, दैट इज अल्कोहल, ठीक है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का ये मैकेनिज्म होता है, इसमें कुछ कुछ चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। तो इसका जो की पॉइंट्स है, की पॉइंट्स ऑफ दिस रिएक्शन, सबसे पहला कि इट इज सिन एडिशन ऑफ वाटर, ये पूरा मैकेनिज्म तो सबको क्लियर है। इफेक्टिवली अगर पूरे रिएक्शन को हम एक लाइन में लिखें तो हमारे पास हुआ क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे हमने डाला BH3 इन THF मीडियम, ठीक है। उससे हमारा क्या बना, BR3 बन गया, और इसका हमने हाइड्रोलिसिस किया, सॉरी H2O2 बेसिक मीडियम में किया, तो फिर हमारा कंपाउंड क्या बना, B OR होल 3, फिर इसका हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस, तो फाइनली हमारे पास ROH आ गया 3 में, ठीक है। तो इस प्रोसेस में हुआ क्या है, ये R हमारा क्या है, R को वापस लिख देते हैं, R हमारा ये ग्रुप था, ठीक है, CH3 CH2 CH2 ग्रुप, तो ROH हमारा एग्जैक्टली है क्या, दिस इज नथिंग बट CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे क्यों लिखा कि पूरे रिएक्शन का कंक्लूजन यही है कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, वाटर ऐड हो रहा है, ठीक है, इस डबल बॉन्ड में H प्लस और OH माइनस का एडिशन हो रहा है इन सेम फैशन, ठीक है। तो H और OH क्या ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे सेम साइड में ऐड हो रहे हैं,
So this is the first key point of this reaction, that this reaction is, first key point is, it is syn addition of water to डबल बॉन्ड. ठीक है, एक डबल बॉन्ड के ऊपर क्या हुआ आपका, वाटर का सिन एडिशन हुआ. दैट इज द फर्स्ट की पॉइंट. सेकंड की पॉइंट, दैट इज देयर, दिस इज एंटी मार्कोनिकोव एडिशन. ठीक है, it is anti-Markovnikov addition. Why it is anti-Markovnikov addition? क्योंकि अगर आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से अगर वाटर को ऐड करें, ठीक है, तो कायदे से OH माइनस इस वाले कार्बन पे जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा क्या है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन. ठीक है, अगर कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से होता रिएक्शन, मैकेनिज्म तो हमने देख लिया, इसमें कहीं कार्बोकैटायन आ नहीं रहा है, लेकिन अगर कार्बोकैटायन से ये मैकेनिज्म होता है, जैसे हम लोग पहले केस देखे थे अल्कीन में, जब हम लोग H+ और H2O डाल रहे थे, ठीक है, तो OH इधर ऐड होना चाहिए और H इधर ऐड होना चाहिए. तो दैट इज योर मार्कोनिकोव एडिशन. यहाँ पे वैसे नहीं हो रहा है, यहाँ पे उसका उल्टा हो रहा है. OH हमारे 1 डिग्री कार्बन पे लग रहा है और हाइड्रोजन हमारा 2 डिग्री कार्बन पे लग रहा है. सो दिस इज एंटी मार्कोनिकोव एडिशन. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. आप लोग का आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है क्या? Yes, sir. एक मिनट, मेरे मोबाइल का ही वॉल्यूम कम है क्या? 1 सेकेंड. अब क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, साउंड. हेलो, मेरे साउंड में एको आ रहा है क्या? अभी नहीं आ रहा है sir. ठीक है, हाँ, अब आप लोग का साउंड क्लियर आ रहा है. तो HBO में ये रिएक्शन को हम लोग HBO भी लिखते हैं. कभी कभी एरो के ऊपर ये रिएजेंट वगैरह नहीं देके सीधे HBO भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो HBO से हम लोग को समझना है दैट इज नथिंग बट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. तो पहला पॉइंट ये हमारा कि ये सिन एडिशन होता है. ठीक है, H और OH हमारे सेम साइड से लगता है. दूसरा, इट इज एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, मतलब यहाँ पे जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से जो बनना चाहिए प्रोडक्ट, उसका ऑपोजिट बन रहा है. ठीक है, दैट इज योर एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट. एंड थर्ड, कि इस रिएक्शन में दिस रिएक्शन इज फ्री फ्रॉम रीअरेंजमेंट. ठीक है, फ्री फ्रॉम रीअरेंजमेंट. ठीक है, क्योंकि इस रिएक्शन में कहीं कार्बोकैटायन बन नहीं रहा है, तो इसलिए हमारा रीअरेंजमेंट नहीं होगा इस रिएक्शन में. ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगला रिएक्शन देखते हैं. जब नोट हो जाए तो बोलना सब यस सर. ठीक है, हम मिटा देंगे फिर. एक और चीज नोटिस करो, यहाँ पे हो क्या रहा है. हम लोग 3 स्टेज देखते हैं ये बोरोन का. ठीक है, हमने रिएक्शन स्टार्ट किया था तो बोरोन BH3 के फॉर्म में था. ठीक है, दिस इज लेट अस से स्टेज 1. ठीक है, पहला स्टेज जब कंप्लीट हुआ तो बोरोन का जो कंपाउंड था दैट वाज Br3. लेट अस से दिस इज कंपाउंड 2. ठीक है, थर्ड स्टेज जब रिएक्शन का कंप्लीट हुआ तो दैट इज Br3, सॉरी BOR होल 3. ठीक है, तो दिस इज द थर्ड कंपाउंड ऑफ बोरोन. तो आप एक चीज नोटिस करो, इन तीनों कंपाउंड में ज्यादा स्टेबल कौन है? स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर आपसे पूछे इसमें, इसमें और इसमें, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, 1 या 2 या 3? हेलो Sir, 3. क्यों? सर क्योंकि ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बोरोन के शेयर होंगे. हाँ, तो आप एक चीज नोटिस करो, BH3 में कोई इफेक्ट लग नहीं रहा है. ठीक है, इट इज जस्ट लाइक अ कार्बोकैटायन CH3+. ठीक है, दिस इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद CH3+.
ये जो Br3 हमारा दैट इज समथिंग लाइक 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है, CrRr प्लस, ठीक है, इसी की तरह लगभग इसका प्रॉपर्टीज होगा। तो यहाँ पे दिस कंपाउंड 2 इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, दिस इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय एनीथिंग, दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन। और यहाँ पे ये जो कंपाउंड है दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, क्योंकि बोरॉन पे जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो उसको देगा। तो एक तरह से आप देखो बोरॉन लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बना, फिर मोर स्टेबल से मोर स्टेबल बना, ठीक है। तो ये आपका कंपाउंड हो गया, इसको नोट कर लिया सबने? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, फिर चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या करना है अपने को एनसीईआरटी में, ठीक है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो गया आपका, उसके बाद है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड से हम लोग अल्कोहल कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ इसका रिडक्शन का टेक्निक्स देखते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी में बस एक PDH2 दिया है, NaBH4 देता है और LiAlH4 देता है, ठीक है। और के ईस्टर्स वगैरह, ठीक है। तो हम इनके रिएक्शंस को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, एनसीईआरटी में उतना एग्जांपल्स दिया नहीं है। So, one second. ठीक है, इसको मिटा दे, हेलो, इसको मिटा दे। यस सर। तो हम लोग एक अभी हम लोग देखेंगे रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिडक्शन कैसे कैसे होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग सारे चैप्टर्स आपस में क्या है, बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है, ठीक है। जैसे अभी NaBH4 LiLH4 ये सब आया, तो दिस यू विल स्टडी द सेम थिंग्स इन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, और इट इज आल्सो अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। तो हम लोग दो बार उस चीज को नहीं पढ़ेंगे, हम लोग एक ही बार क्या कर रहे हैं, सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी अभी तक आपको रिडक्शन रिएक्शंस दिखेंगे सबको हम लोग एक ही साथ डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। तो मे बी इसका कुछ पोर्शन आपको अल्कोहल्स में पढ़ना हो, कुछ पोर्शंस आपको इसका कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ना हो, कुछ एल्डिहाइड कीटोन्स में, कुछ हमारे अमाइंस में, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे सबको बारी बारी से एक बार देखने का, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखो हमारे पास एक अल्कोहल होता है, ठीक है, दिस इज योर अल्कोहल, ठीक है। इसको अगर आप ऑक्सीडाइज करो, ऑक्सीडाइज करो मतलब ऑक्सीजन ऐड करो या फिर हाइड्रोजन को लूज करो, ठीक है। तो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बन सकता है या फिर कीटोन बन सकता है, ठीक है। फर्दर इसको अगर आप ऑक्सीडाइज करो, ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा, RCOOH, ठीक है। तो हम लोग को कुछ कुछ देखना है कि यहाँ से यहाँ तक बढ़ाने के लिए हम लोग को कौन सा रिएजेंट यूज करना होगा, यहाँ से यहाँ तक बढ़ाने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करना होगा, यहाँ से यहाँ तक रिड्यूस करने में कौन सा रिएजेंट यूज करना होगा, यहाँ से यहाँ तक रिड्यूस करने में कौन सा रिएजेंट यूज करना होगा, यहाँ से यहाँ तक के लिए कौन सा करना होगा, यहाँ से यहाँ तक के लिए कौन सा करना होगा, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से सबको देखते हैं, एक एक जो रिएजेंट हम लोग देखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है।
तो सबसे पहला रिएजेंट जो आपके सामने आएगा दैट इज NaBH4। NaBH4 और LiAlH4, ठीक है। तो हम लोग साथ में इन दोनों को पढ़ते हैं, इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती है, बहुत सारे डिफरेंसेस भी होता है, तो हम लोग बारी बारी से इसको देखते हैं, ठीक है। सो NaBH4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, दिस इज BH माइनस Na प्लस, ठीक है। LiAlH4 इट इज आल्सो समटाइम्स रिटन एज LaH, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर LaH दिखे तो कंफ्यूज नहीं होने का, ये कौन सा रिएजेंट है। दिस इज नथिंग बट योर LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। दिस इज योर सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो LiAlH4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, दिस इज एल्युमिनियम, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज माइनस Li प्लस, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो कॉलम बना लेते हैं, NaBH4 वर्सेस LiAlH4, ठीक है। तो NaBH4 इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट, compared to this LiLH4 is a much stronger reducing agent. So this is the first point of difference. अब weak reducing agent है तो ये क्या करेगा, ये हमारे अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को फर्स्ट डिग्री अल्कोहल्स या 2 डिग्री अल्कोहल बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई अल्डिहाइड हो जैसे RCHO, ठीक है, इसमें अगर आप डाल दिया NaBH4 को हम लोग शॉर्ट में SBH भी बोलते हैं, ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने डाल दिया SBH, तो ये RCH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज योर 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने सेम चीज किसी कीटोन के साथ कर दिया, RC डबल बॉन्ड लो R डैश, उसमें अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल दिया तो इट विल फॉर्म RCHOH R डैश, ठीक है। सो दिस इज अ 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। LiLH4 भी सेम काम कर सकता है, ठीक है। अगर वीक रिड्यूसिंग एजेंट कोई रिएक्शन कर पा रहा है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डेफिनेटली उसको कर ही देगा, ठीक है। तो सेम रिएक्शंस फिर से लिख ले रहे हैं, दिस सेम रिएक्शन RCHO LaH 1 डिग्री अल्कोहल, RCO R डैश LaH 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, सेम रिएक्शन शो करेगा। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, अब जो ज्यादा पावरफुल हमारे क्या जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे अगर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, तो NaBH4 उसको रिड्यूस नहीं कर पाता, लेकिन LiLH4 जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये उसको भी रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो दिस इज, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्शन कराते हैं SBH के साथ, नो रिएक्शन, ठीक है। वही अगर इसके साथ कराते हैं आप LiLH4 के साथ, दिस इज द थर्ड, so this will reduce into 1 degree alcohol, okay, because LiLH4 is a stronger reducing agent compared to NaBH4. Similarly कुछ और ग्रुप्स है, जैसे एसिड का एक छोटा वही होता है ईस्टर, ठीक है, RCOO R डैश, उसके साथ आप सोडियम बोरोहाइड्राइड का कराएंगे नो रिएक्शन, ठीक है, जबकि यहाँ पे आपका रिएक्शन हो जाएगा RC डबल बॉन्ड हो R डैश, इसका अगर आप इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिक्सचर ऑफ अल्कोहल्स मिलेगा, ठीक है। R के साथ ये जो कार्बन है दिस विल फॉर्म RCH2OH, ठीक है, और ये जो हमारा R डैश है R डैश विल फॉर्म R डैश OH, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज, एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको ये
रिड्यूस कर पाता है, ठीक है, दैट इज एसिड क्लोराइड। इसमें अगर SPH डाला आपने तो दिस कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है, और इससे रिड्यूस हो रहा है तो इससे तो डेफिनेटली हो जाएगा। फोर्थ में सेम रिएक्शन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, तो जस्ट नोट इट डाउन, इसको एक बार लिख लो, फिर हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि NaBH4 LiLH4 कैसे रिड्यूस होता है, ठीक है। फिर ये चीज भी हम लोग देखेंगे कि RCOCl को ये क्यों रिड्यूस कर पा रहा है, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। यस सर। तो ये हमारा NaBH4 जो होता है, NaBH4 और LiAlH4, ठीक है, these are hydride donors basically, hydride donors, ठीक है। तो H माइनस आयन ये क्या करता है, लिबरेट करता है, ठीक है, और H माइनस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाता है हमारे C डबल बॉन्ड O पे, ठीक है। तो हम लोग इसका मैकेनिज्म देख रहे हैं। एल्डिहाइड कीटोन के लिए एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए ये रिएक्शन कैसे हो रहा है। तो कोई एल्डिहाइड ले लेते हैं, कोई सा भी, लेटेस्ट से जनरल फॉर्मूला ले रहे हैं RCHO, स्ट्रक्चर से ड्रॉ कर लेते हैं RC डबल बॉन्ड H, इसमें आपने क्या डाला LiAlH4, ठीक है। तो इफेक्टिवली ये क्या काम करता है, दिस डोनेट्स अ हाइड्राइड, ठीक है, एक H माइनस आयन आएगा that is going to attack on this carbon which is having delta plus, इस पे delta माइनस होगा, तो H माइनस ने इस पे अटैक किया RCHO माइनस, ठीक है, और फिर इसका हाइड्रेशन हो जाता है, तो यहाँ से ये H प्लस ले लेता है RCH2OH, ठीक है। तो दिस इज फॉर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। सेम काम आप इसके लिए अगर करें कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या होगा, दिस इज योर RC डबल बॉन्ड OH, इसका आपने रिएक्शन कराया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज होता है, यहाँ पे हाइड्राइड आयन आता है, H माइनस आयन ये लिबरेट किया, बट हियर H माइनस आयन डज नॉट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे H माइनस आयन इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। यहाँ पे H माइनस आयन विल फर्स्ट एक्ट एज अ बेस, ठीक है। तो जब ये बेस की तरह एक्ट करेगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, इसके बाद एसिडिक H प्लस है, तो H प्लस और H माइनस मिलके सबसे पहले क्या करेगा, अपना हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे जो माइनस चार्ज होगा उसके साथ ये बाकी का कंपाउंड बॉन्ड बना लेगा। तो H माइनस जो हमारा बेस की तरह अटैक हुआ है, फर्स्ट इट इज गोइंग टू अटैक हियर और यहाँ से H प्लस निकलेगा, ठीक है। तो हमारा कंपाउंड क्या हो गया,
RC डबल बॉन्ड O और बाकी ये जो सॉल्ट बचा हमारा, तो इसकी बॉन्डिंग हो जाती है एल्युमिनियम के साथ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और लाइक दिस, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, सॉल्ट बन जाता है। अब वन सेकेंड, यहाँ पे क्या है, एल्युमिनियम के पास नेगेटिव आयन है, ठीक है। अगेन ये एक हाइड्राइड आयन डोनेट करता है और वो हाइड्राइड आयन एज न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है, एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट हियर इज RCO माइनस O Al H, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, इसका एक हाइड्रोजन इधर आ गया, ठीक है। अब दिस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। जब भी आपके पास ऐसा हो कि डबल बॉन्ड पे कोई चीज अटैक कर रहा हो और डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसके पास कोई अच्छा लिविंग ग्रुप हो, ठीक है, तो ये कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड फिर से वापस आ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये बॉन्ड खुला और यहाँ पे चूंकि ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, दिस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ये जो हमारा चीज है, दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, हमारा कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये इधर से वापस आएगा और ये इधर से निकल जाएगा, बिकॉज इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। और हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो एल्डिहाइड अपने को मिल गया। फिर एल्डिहाइड पे जैसे LiLH4 का इधर रिएक्शन कर रहा है वैसे ही, और हमारा ये क्या बन गया, RCH2OH, ठीक है। So this is the mechanism for attack on carboxylic acid, ठीक है। ठीक है, यस सर। सेम काम आप ईस्टर पे भी करा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे ईस्टर हो तो ईस्टर में ज्यादा झमेला नहीं है, क्योंकि पहले स्टेप में ही अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाता है, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमने किसका अटैक कराया, LiAlH4 का, ठीक है। LiLH4 क्या है, हाइड्राइड डोनर है, हाइड्राइड आयन है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे ये कोई एसिड नहीं है, तो हाइड्राइड हमारा एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, एज बेस एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो एज न्यूक्लियोफाइल इसने अटैक किया इस कार्बन पे, ठीक है। और ये बॉन्ड हमारा इधर शिफ्ट हो गया, तो कंपाउंड हमारा क्या बना, RCO-OR, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो अगेन हमने क्या बताया, यहाँ पे ये चीज बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप था। जब भी पाई बॉन्ड इस तरफ खुले, अगर ये कोई बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप हो तो पाई बॉन्ड फिर से वापस आ जाता है, ठीक है। सो अगेन हियर यू सी दिस RO माइनस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो गुड लिविंग ग्रुप है तो ये लीव करेगा, इधर से ऐसे ऐसे आके RO माइनस निकल जाएगा, अगेन इट विल फॉर्म अ RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और प्लस RO माइनस। तो RO माइनस अगेन वाटर मॉलिक्यूल से एक एल्डिहाइड बना दिया, H प्लस लेके, सॉरी एल्डिहाइड कह रहे हैं, अल्कोहल, ठीक है। और फिर एल्डिहाइड अगेन इसकी तरह रिएक्ट कराएगा LiLH4 से, अगेन इट विल बिकम RCH2OH, okay? So just note it down, then we'll move further.
हेलो, इज इट क्लियर? सर इको आ रहा है। हेलो, अभी आवाज? सर इको आ रहा है। अभी ठीक है? नो सर। अभी अभी क्लियर है आवाज? यस सर, यस सर। ओके, तो क्या कह रहे थे? हाँ, तो इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया? इसमें किसी को कुछ डाउट? आगे बढ़े? Yes, sir. यस सर। तो हम लोग को यहाँ पे एक चीज समझना है, ठीक है? अलग अलग कार्बोनाइल ग्रुप्स होते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जिसपे हमारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। जैसे सबसे पहला जिसपे हो सकता है दैट इज योर एल्डिहाइड, ठीक है। और किस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता है? दैट इज कीटोन, ठीक है। और हमारे एसिड क्लोराइड, ठीक है, एसिड क्लोराइड, एसिड हैलाइड कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। फिर हमारे पास और क्या क्या हो सकता है? ईस्टर। और क्या क्या हो सकता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ, NH2, ठीक है, अमाइड। इन सब पे हमारा क्या हो सकता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलते हैं उसको, क्योंकि वहां पे सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, एडिशन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे। तो आप एक चीज सोच के बताओ, ये जो हमारे पास कंपाउंड है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, ठीक है, इसमें आपको बताना है, क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है। इन सब कंपाउंड में आपको ऑर्डर बताना है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है। एक मिनट सोचो, फिर उसके बाद कुछ एक ऑर्डर बताओ। ये फोकस सर हेजी आ रहा है। हाँ वही, अब ठीक है सर। हाँ ठीक है। तो आपको इसमें बताना है इसके न्यूक्लियोफिलिक अटैक का रेट क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 इन सब में, ठीक है। कोई अगर न्यूक्लियोफाइल इन सब पे अटैक करे तो उसका रेट क्या होगा, किस पे सबसे फास्ट अटैक करेगा, किस पे सबसे स्लो अटैक करेगा, ठीक है। सर 6 सबसे ज्यादा हो। 6 सबसे ज्यादा होगा, क्यों?
सर क्योंकि सर वो कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, क्योंकि बगल में NH2 ग्रुप है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को रेजोनेंस में देगा। हाँ, तो उससे उससे सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक अच्छा होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे बढ़ेगा? कार्बन पे। यस सर। तो उसके कारण न्यूक्लियोफिलिक अटैक ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा। कम होगा ना। न्यूक्लियोफिलिक अटैक किस केस में ज्यादा होगा? जब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी ज्यादा हो, तब बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा। ओके सर, ओके। लेकिन यहाँ पे इसका अंदर में ही बहुत ज्यादा कंपेंसेट हो चुका है, तो इसलिए बाहर से अटैक नहीं करना पाएगा, तो इसका सबसे लोएस्ट होगा एक्चुअली। फिर से आप पूरा ऑर्डर एक बार सोचो, इस लॉजिक के हिसाब से ऑर्डर पूरा बताओ 1 to 6 का। सर 3 सबसे ज्यादा। 3 सबसे ज्यादा होगा, हाँ। उसके बाद उसके बाद 1 2 हाँ 4 5 6। करेक्ट। ठीक है, तो ऐसा हो क्यों रहा है हम लोग देखते हैं। यस सर। हम लोग को न्यूक्लियोफिलिक अटैक का रेट देखना है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, ठीक है, तो उसके अटैक का हमको रेट देखना है। तो न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक करना ज्यादा चाहेगा, या फिर वहां पे उसका रेट ज्यादा होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ज्यादा हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल्टा प्लस है, यहाँ पे भी डेल्टा प्लस है, हर कार्बन में इस तरह से हम लोग कह रहे हैं डेल्टा प्लस है, ठीक है। अब एक एक कंपाउंड्स को देखते हैं। यहाँ पे एक तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट से क्या हो रहा है, इसका कंपेंसेट किया जा रहा है, इसको डेल्टा प्लस को, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो तरफ से डेल्टा प्लस को कॉम्पेंसेट किया जा रहा है, आर ग्रुप हमारे दोनों तरफ से, ठीक है। इस केस में क्या है, एक तरफ से कंपेंसेट किया जा रहा है और एक तरफ से क्लोरीन है विच इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब आप बोलेंगे रेजोनेंस तो यहाँ पे भी हो सकता है, क्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, लेकिन हमने बताया था हैलोजन इज द एक्सेप्शन जहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है ओवर रेजोनेंस, ठीक है। तो ओवरऑल क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीशीज, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये क्या कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट से। यहाँ पे भी ऑक्सीजन रेजोनेंस से दे रहा है इलेक्ट्रॉन और ये दे रहा है इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे भी रेजोनेंस से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन को और ये दे रहा है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा डेल्टा प्लस किस कंपाउंड पे है, थर्ड वाले कंपाउंड पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है जो विड्रॉ कर रहा है, बाकी सब जगह दोनों तरफ से इसको मिल रहा है। एक थर्ड ही ऐसा केस है जिसमें एक तरफ से दे रहा है और एक तरफ से कोई खींच रहा है, ठीक है। तो डेल्टा प्लस जो होगा यहाँ पे सबसे मैक्सिमम होगा हमारा क्लोरीन के केस में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो डेल्टा प्लस सबसे ज्यादा इस केस में होगा। अब उसके बाद हमारे ये केस आता है, क्योंकि इसमें एक तरफ से ही डोनेट कर रहा है, दूसरी तरफ से कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सेकंड जो डेल्टा प्लस होगा वो फर्स्ट वाले में होगा, तो उसका रेट उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कंपाउंड आएगा, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट से दे रहा है और यू कैन से हाइपर कंजुगेशन से दे रहा है, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस के कंपैरिजन में एक वीकर फैक्टर होता है, तो इसीलिए अगला नंबर यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन का आएगा, ठीक है। इसके बाद बचे ये और ये। अब इन तीनों केस में क्या होता है, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। तो इस केस में हम देखेंगे कि कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किस पे प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल है रेजोनेंस के। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन देगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो दैट विल बी मोर स्टेबल। तो ये हमारा क्या हो गया, ज्यादा दे रहा है रेजोनेंस से। अगर ज्यादा दे रहा है रेजोनेंस से मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है कार्बन पे, मतलब उसको बहुत ज्यादा कॉम्पेंसेट कर रहा है डेल्टा प्लस को। यहाँ पे जो कार्बन पे डेल्टा प्लस था उसको ये बहुत ज्यादा
कंपेंसेट कर रहा है क्योंकि नाइट्रोजन के थ्रू इफेक्टिवली बहुत ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, तो इसकी रेट सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, दिस इज योर 6th नंबर। अब बचा ये दोनों, ऑक्सीजन और OR। तो OR में रेजोनेंस दोनों में हो रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, R इंडक्टिव इफेक्ट से भी दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्पेंसेट ज्यादा कर रहा है 4th केस में। ठीक है, कॉम्पेंसेट ज्यादा कर रहा है तो बाहर से इसको कम जरूरत चाहिए, तो इसीलिए ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? I'll just summarize यहाँ पे क्या क्या हुआ है। यहाँ पे because chlorine is an electron, because of chlorine there is a strong delta plus। सर वीडियो रुक गया है। वीडियो रुक गया है। ठीक है, तो यहाँ पे because of chlorine in third compound, because of chlorine there is a strong delta plus, और strong delta plus है उसके कारण क्या है, यहाँ पे rate of reaction सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा यहाँ पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफाइल उस पे अटैक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरफ से दूसरी तरफ से कोई देने वाला ग्रुप नहीं है। इनफैक्ट R ग्रुप सब में कॉमन है, तो उसके इफेक्ट को हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि वो फैक्टर सबके लिए कॉमन है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, डेल्टा प्लस इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस नॉर्मल जो हमारा डेल्टा प्लस होता है बस वही है, तो उसके बाद उसका रेट आ गया। इस कंपाउंड में क्या हो रहा है, जो R ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पे कंपेंसेट कर रहा है, बट इट कंपेंसेट्स बाय हाइपर कंजुगेशन व्हिच इज अ वीकर फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जो R ग्रुप है उसके कारण उतना कॉम्पेंसेट नहीं होगा डेल्टा प्लस, बट फिर भी थोड़ा सा कॉम्पेंसेट होगा। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डेल्टा प्लस है, यहाँ पे लेट अस से इसको हम 3-4 एरो से डिनोट करते हैं। डेल्टा प्लस इस पे बहुत ज्यादा है, यहाँ पे लगभग उतना है, यहाँ पे 1 एरो से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, इन तीनों कंपाउंड में क्या है, दिस इज ये हाइपर कंजुगेशन से दे रहा है, इन तीनों में रेजोनेंस से दिया जा रहा है। ठीक है, तो रेजोनेंस के कारण क्या होगा, यहाँ पे जो डेल्टा प्लस होगा, डेल्टा प्लस दैट विल बी वेरी वेरी लेस। तो अगर यहाँ पे 1 एरो दिए तो इसको लेटर से आधा एरो हम दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस बहुत कम होगा। अब रेजोनेंस के केस में भी हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन वाला रेजोनेंस ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, तो उसका रेट सबसे खराब हो गया, उस पर डेल्टा प्लस सबसे कम होगा, लोएस्ट डेल्टा प्लस। ठीक है, और फिर इन दोनों में हम कंपेयर कर सकते हैं, आर का इधर से इंडक्टिव इफेक्ट से भी दे रहा है और रेजोनेंस से भी दे रहा है और इधर सिर्फ रेजोनेंस से दे रहा है, तो इसके अंदर डेल्टा प्लस कम होगा फिफ्थ वाले में, तो इसीलिए रेट हमारा कम है। क्लियर है सबको? हेलो, इसमें किसी को कुछ डाउट? नो सर। No, sir. ओके, आगे बढ़े। हाँ Yes, sir. बोलो। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमने ये डिस्कशन क्यों किया था एक्चुअली, तो देखो ये हमारा कंपाउंड नंबर 1 और 2 जो है, कंपाउंड नंबर 1 और 2 जो आ रहा है, ठीक है? तो हमने बताया कि हमारा SBH जो है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, आ गया, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड इन दोनों को रिड्यूस कर पाता है अल्कोहल पे, अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, SBH कैन रिड्यूस 1,2। ठीक है, तो अगर 1 और 2 को रिड्यूस कर पा रहा है तो थर्ड तो उससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसको तो डेफिनेटली कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि सोडियम बोरोहाइड्राइड हमारे एसिड क्लोराइड को भी क्या करता है, रिड्यूस कर देता है अल्कोहल। और वही हमारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो इन सबको कर देगा। सो ऑल ऑफ दीज get reduced to alcohols by lithium aluminum hydride। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड बस इन तीनों को कर पाता है, 1, 2 और 3, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसमें से किसी को भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, इसको मिटाएं, आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। तो अगला हमारा जो रिड्यूसिंग एजेंट है दैट इज डिबाल एच। ठीक है, स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. सो डिबाल एच इज Sir. डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम से एक हाइड्रोजन और दो जगह आइसोब्यूटाइल लगा हुआ है। ठीक है, दिस इज योर आइसोब्यूटाइल, दिस इज योर डिबाल एच। ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, सो इसका भी रिएक्शन ऑलमोस्ट, इसका मैकेनिज्म आइडेंटिकल होता है, जस्ट लाइक AlHO4, जस्ट लाइक LiAlH4। ठीक है, बस इसमें एक डिफरेंस है। ठीक है, LiAlH4 में हमारे पास 3 हाइड्राइड थे, सॉरी 4 हाइड्रोजन थे एल्युमिनियम से अटैच। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। ठीक है, तो LiAlH4 का जब हम रिएक्शन कराते थे हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स या फिर ईस्टर में, तो वो पूरा हमारा अल्कोहल तक रिड्यूस करा देता था, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में बहुत सारे हाइड्राइड डोनेट करने का क्या था, कैपेसिटी था। लेकिन यहाँ पे ये एक ही हाइड्राइड डोनेट कर सकता है, हमारा जो ये डिबाल एच है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन इससे कराते हैं तो रिएक्शन हमारा अल्कोहल पे ही रुक जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं लेटेस्ट से RC डबल बॉन्ड OH, इसका हमने रिएक्शन कराया डिबाल एच से, तो हमारा ये अल्कोहल पे ही क्या होगा, गाड़ी रुक जाएगा। ठीक है, सॉरी अल्कोहल पे नहीं, एल्डिहाइड पे गाड़ी रुक जाएगा, फर्दर रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, रीजन यही है कि इसके पास एक ही हाइड्रोजन है डोनेट करने के लिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हेलो? Yes, sir. यस सर। ठीक है, सिमिलरली अलग अलग रिएक्शंस आप देख सकते हैं। हाँ बोलो, क्लियर है ना? हेलो? यस सर। Yes. ओके, सिमिलरली डिबाल एच के कुछ कुछ और रिएक्शंस आप देख सकते हैं, जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड N। इसका अगर आप डिबाल एच से कराएं, ठीक है, तो डिबाल एच क्या करेगा, हाइड्राइड डोनर है। ठीक है, तो H माइनस सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पे H माइनस जो डोनेट करेगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक किया यहाँ पे कार्बन पे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो दिस विल फॉर्म RC डबल बॉन्ड N H माइनस। ठीक है, फिर आप इसका क्या करा दो, हाइड्रोलिसिस करा दो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस H3O+। तो सबसे पहले H+ यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, और इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, इमाइन बोलते हैं। इसका फर्दर अगर आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं H3O+ से, तो क्या होता है, H3O+ करा दो या फिर H2O भी करा सकते हैं सीधे, अगर एसिडिक नहीं सीधे हाइड्रोलिसिस नहीं करोगे इसका, तो क्या हो जाता है यहाँ पे H2O। यहाँ से रिएक्शन में NH3 उड़ जाता है। ठीक है, एल्डिहाइड मिल जाता है आपको। ये रिएक्शन आपको याद रखना है, इमाइन के हाइड्रोलिसिस पे ये कैसे होता है, मैकेनिज्म आप सोच सकते हैं, है ना? इसका लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, एंड वो बॉन्ड उधर शिफ्ट होगा। ठीक है,
फिर एक H+ उस पे अटैक करेगा, एक दूसरा H+ अटैक करेगा, NH3 निकल जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। तो यहाँ पे NH3 निकल जाता है और ये हमारा एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। RCOH का हमने लिख दिया और इसके फर्दर रिएक्शंस है हमारे RC डबल बॉन्ड O डैश, ठीक है। इस पे हमने डिवालाइज कराया, तो अगेन यहाँ से हाइड्राइड डोनर है, H- आएगा, इधर ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, फिर OR- अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो OR- इधर से निकल जाएगा और हम लोग को एल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। और R-O- जो निकला है, R-O-, वो वाटर मॉलिक्यूल से H+ लेके R-OH बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक अल्कोहल मिला, एक एल्डिहाइड मिला, ठीक है। नेक्स्ट इज योर दिस एसिड क्लोराइड से। अब इन सब जो हमारे लेस रिएक्टिव थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के, उनके साथ जब ये रिएक्ट कर पा रहा है तो RCOCl तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इससे भी हमारा रिएक्ट करेगा, ठीक है। एक हाइड्राइड आयन इधर देगा H-, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, फिर Cl- अच्छा लीविंग ग्रुप है तो बॉन्ड वापस आएगा, Cl- निकल जाएगा इधर से, इट विल फॉर्म RC डबल बॉन्ड OH, इट इज एल्डिहाइड। Is it clear to everyone? Hello? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारे LiAlH4 है, इन सब का ईथर्स पे कैसा रिएक्शन होता है, जस्ट इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं some more reactions of some more reduction reaction। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये इसके साथ RnO2 को, RnO2 जो है हमारा, इसमें अगर आप डाले LiAlH4 तो नाइट्रो को ये अमाइंस में रिड्यूस कर देता है, ठीक है। ऑक्साइन, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, नाइट्रो, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ऑक्साइन। इस पे अगर आप रिएक्शन करा देते हैं LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, तो यहाँ पे RCH2NH2, ये हमारा अमाइंस में रिड्यूस हो जाता है। थर्ड रिएक्शन, अगर आपको इसका रिएक्शन कराते हैं किसी एपॉक्साइड में, दिस इज एपॉक्साइड, लेटेस्ट से हम लोग सब्स्टिट्यूटेड एपॉक्साइड लेते हैं, इसमें LiAlH4 हमारा क्या करेगा, ठीक है। तो हमको पता है LiAlH4 क्या है, हाइड्राइड डोनर है, ठीक है। तो हाइड्राइड कहाँ पे अटैक करेगा, अब हाइड्राइड के पास दो ऑप्शन है, ये ऑक्सीजन होने के कारण इस कार्बन पे हमारे डेल्टा पॉजिटिव है, इस कार्बन पे भी डेल्टा पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्राइड का अटैक होता है, इस तरह होता है कि जो कार्बोकैटायन बने वो ज्यादा लेस हिंडर्ड पे बने, ठीक है।
ये रिएक्शन हमारा बेसिकली SN2 होता है, SN2 सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे होगा, ठीक है, बिकॉज दिस रिएक्शन इज SN2। SN2 हमारे लेस हिंडर्ड साइड पे होता है, या ये वाला हम अगर इधर अटैक हो और ये बॉन्ड इधर खुले, ठीक है, तो एक तरफ से ही अटैक कर सकता है। अगर इस पे हम लोग लेटेस्ट से अटैक करा इस वाले कार्बन, ठीक है, तो दिस कार्बन इज मोर हिंडर्ड और ये मैकेनिज्म SN2 होता है, तो हम लोग का ये तरीका नहीं होगा, ये तरीका होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? हेलो सर Yes, sir. हाँ, यहाँ पे मैकेनिज्म SN2 होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी से हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग SN2 में क्या देखते थे कि किधर लेस हिंडर्ड है ना, प्राइमरी अल्कोहल्स, सॉरी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो होते थे हमारे, वो ज्यादा रिएक्टिव होते थे। तो ये भी लगभग प्राइमरी जैसा ही है, एक ही इससे कार्बन से अटैच है, तो अटैक हमारा इस पे होगा, इस पे नहीं, ठीक है। तो इधर से होगा, ये इधर खुल जाएगा, तो दिस विल बिकम CH2। CH2 पहले से था, ये जो हाइड्रोजन आया हरा वाला हाइड्रोजन, ठीक है, तो वो हरा वाला हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा और फिर ये O- हमारा इधर आ जाएगा। अगले स्टेप में फिर आप इसमें HCO डाल सकते हैं, ये OH बन जाएगा, ये हरा वाला हाइड्रोजन। हरा वाला हाइड्रोजन का मतलब समझ रहे हैं? अगर लेटेस्ट से यहाँ पे LaH नहीं होता, हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे ड्यूटेरियम लेते हैं, ठीक है, तो वो ड्यूटेरियम आपको कहाँ दिखता है? यहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग थोड़ा मैकेनिज्म याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन ऐड होता है वो हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है? वो ये वाटर वाला है। तो अगर इस स्टेप में यहाँ पे हम H3O+ की जगह D3O+ डाल दें, ड्यूटेरियम ले लें, तो यहाँ पे ये हमको OD दिखेगा, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा चीज आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, कौन किधर से किधर जा रहा है। और एक जो रिएक्शन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं, दैट इज फ्रॉम अल्कीन टू अल्केन, RCH डबल बॉन्ड CH2। इसमें अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे नो रिएक्शन, ठीक है। अल्कीन्स आर अनरिएक्टिव टू LiAlH, ठीक है, या फिर अल्काइंस भी हमारा RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, no reaction, ठीक है। Alkenes and alkynes are unreactive to lithium aluminum hydride, ठीक है। इसके अलावा कुछ और रिएक्शंस है, एक और रिएक्शन है बेसिकली, दिस इज योर पेरोक्सी ईथर, ठीक है, पेरोक्सी बॉन्ड होता है, तो इस पे हमारा हाइड्राइड आयन का अटैक हो जाता है, H- आएगा, किसी पे भी अटैक करा सकते हैं, लेटेस्ट से इस ऑक्सीजन पे अटैक करता है, तो ये बॉन्ड इधर से खुल जाएगा, RO- इज अ गुड लिविंग ग्रुप हमने बताया था, और ये क्या बन जाएगा? RO, और ये H जो होगा ये, अच्छा इसको ब्लू से कर दो आप, तो ये ब्लू वाला जो H लगा है वो ब्लू है, ठीक है, और इधर से RO- निकला है। फर्दर इसको दूसरे आप H2O से या फिर H3O+ से करा दीजिए, दिस विल बिकम RO, ये ब्लू वाला H, ठीक है। तो ये आपके क्या है? LiAlH4 के अदर रिएक्शन है, जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
लिख लिया इसको, आगे बढ़े। यस सर। ठीक। इसके अलावा एक दो और पॉपुलर नेम्ड रिएक्शन, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन। उसमें एक हमारा आता है रोजेनबर्ग रिडक्शन। तो रोजेनबर्ग रिएक्शन में हम लोग ये करते हैं RC डबल बॉन्ड Cl, ठीक है, अल्काइल हैलाइड असाइल हैलाइड लेते हैं, असाइल क्लोराइड बेसिकली यहाँ पे, और इसका हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, H2TdBH4, ठीक है, which is also known as Lindlar's catalyst। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा रिडक्शन होता है वो रिडक्शन यहाँ तक होता है RC डबल बॉन्ड H, ठीक है। अगर इसमें हम लिंडलार्स कैटलिस्ट या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइजन पैलेडियम, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉइजन पैलेडियम हम ना लें, डायरेक्ट हम इसका हाइड्रोजनेशन करें, ठीक है, विदाउट पॉइजन पैलेडियम, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हमारे ये बनता है और फिर ये फर्दर रिड्यूस हो जाता है किसमें, RCH2OH में। तो रिएक्शन में आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, आपको एल्डिहाइड नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा अगर हम पॉइजन पैलेडियम यूज ना करें तो, ठीक है। लेकिन पॉइजन पैलेडियम में हमारा रिएक्शन इधर ही रुक जाता है। जस्ट लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग को किसी कंपाउंड में सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड को हमको रिड्यूस कराना है, ठीक है, तो हम लोग उस केस में क्या करते थे, पॉइजन पैलेडियम लेते थे। पॉइजन पैलेडियम के केस में क्या होता था, ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस होता था, रिकॉल कर लो आपको, हम लोग जब RCH डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, इसका अगर आप रिएक्शन कराओ सीधे हाइड्रोजनेशन के साथ, ठीक है, तो दोनों रिएक्ट कर जाएंगे। RCH2 कितना CH2 है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे वो ले लो, हमारा जो लिंडार्स कैटलिस्ट है PDBSO4 के प्रेजेंस में अगर आप H2 कराओ तो सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस होगा, और वो भी डबल बॉन्ड पे रिड्यूस होकर रिएक्शन रुक जाए। हमारे कंपाउंड उस केस में क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड सॉरी CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड हमारा डबल बॉन्ड पे ही रुक जाता है, डबल बॉन्ड पे फर्दर BSO4 हमारा रिएक्ट नहीं करता। इसका रीजन भी हमने शायद एक्सप्लेन किया था आप लोगों को कि क्या होता है कि PDBSO4 मतलब पैलेडियम का जो सरफेस होता है, ठीक है, उस पे क्या हो जाता है, हम लोग BSO4 के कुछ कुछ इस तरह से पार्टिकल्स लग जाते हैं, ठीक है। तो इसके बीच हमारा ये जो सिंक करता है, एक्चुअली ये सरफेस रिएक्शन है, हमारे ये मॉलिक्यूल सरफेस पे सिंक करता है। तो चूंकि यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे पॉइजन डाल दिया, दैट इज पॉइजन इज नथिंग बट योर BS, पॉइजन इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये रिएक्शन के रेट को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है। जिस तरह कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को फास्ट करता है, एक तरह से निगेटिव कैटलिस्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाई दिस इज द पॉइजन हियर BSO4। तो उसके कारण हमारा क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड तो इसमें सिंक कर जाता है बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड इज स्मॉलर, ट्रिपल बॉन्ड की साइज स्मॉलर होगी तो वो इसमें सिंक कर जाएगा, लेकिन डबल बॉन्ड हमारा सिंक नहीं कर पाता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई ओनली ट्रिपल बॉन्ड्स रिएक्ट, डबल बॉन्ड्स कैन नॉट रिएक्ट। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हमारा एज इट इज है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत हम हाइड्रोकार्बन्स में था, सेम चीज था, तो हमने रिकॉल कर लिया, ठीक है। So this is your Rosenmann's reduction. Rosenmann reduction ये ऊपर वाला reaction. Is it clear to everyone? यस सर। हाँ, इसी से मिलता जुलता एक और रिएक्शन होता है, that is Stephens reduction. Stephens reduction.
ये स्टीफेंस रिडक्शन हमारा क्या होता है, इस पे आप ये लेते हो RC111, ठीक है, और इसमें क्या रिएक्शन कराते हो, SnCl2 प्लस HCl, ठीक है, तो ये आपका बन जाता है इमाइन, और फिर इसका आप हाइड्रोलिसिस करा दो जैसे अभी दिखाया था, दिस इज इमाइन, इसका आप हाइड्रोलिसिस करा दो H2O के साथ, तो यहाँ पे आप फिर अमोनिया निकाल सकते हैं, NH3 निकल गया, और ये हमारा एक दूसरा कंपाउंड हो गया RCHO माइनस, तो दिस इज योर स्टीफेंस रिडक्शन। ठीक है, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया इसको, यस Yes, सर। sir. ओके, तो फिर हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी में फिर इसके बाद क्या है। आ गया। एनसीईआरटी में इसके बाद पढ़ना है अपने को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के बारे में, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या क्या है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ठीक है, तो हम लोग अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट थोड़ा देखते हैं। इरेजर